This conference will now be recorded. All right, guys, welcome to the day 15 of this program. Thank you so much for joining as always. Probably हम halfway stage तक पहुंच चुके हैं अभी और 15 classes मैं सोच रहा हूँ हम लेंगे. उसके बाद अगर जरूरत हुई तो और लेंगे, but we are close to halfway stage. काफी हमने concepts cover किए हैं, काफी ground cover किया है. I hope these classes are helping you in some way in changing your thoughts, changing your perception, and helping you to advance. Okay, so आज का टॉपिक है, और शुरू करने के पहले हम एक चैंट कर लेते हैं. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. All right, so आज का टॉपिक है from how to go from mediocrity is nothing but like average, less than average, below average, or average to excellence. तो हम कैसे अपने अपने chosen field में या अपने अपने पाथ में हम कैसे excel कर सकते हैं. ओके, तो आज का टॉपिक काफी लाइट है. आई डोंट थिंक ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और बहुत ही easy way में समझ आ जाएगा. We'll see some things which are really very wrongly understood. Okay, so today's topic is very simple. First एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर देंगे सभी लोग, फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे हम कि स्पीड क्या है, स्पीड वर्सेस परफेक्शन का क्या रेशियो है या मतलब उसका क्या है, उसके बारे में एक ओवरव्यू मॉडल देखेंगे. वो अगर ओवरव्यू मॉडल में क्या प्रॉब्लम है, रियलिटी को हम कैसे परसीव करेंगे, और फाइनली ये मॉडल्स जो आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो कैसे मुझे हेल्प किया है अभी तक. ओके, और लास्ट में हम क्वेश्चंस लेंगे एज यूजुअल. सो टुडेज क्वेश्चन इज दिस, एंड आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी, सो आई विल आस्क वन बाय वन. तो क्वेश्चन ये है, क्या आप बहुत चीजों में एवरेज रहना पसंद करोगे या फिर सिर्फ कुछ चीजों में एक्सपर्ट बनना पसंद करोगे. ओके, सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है. क्या आप बहुत सारी चीजों में जस्ट एवरेज नॉलेज, एवरेज अंडरस्टैंडिंग वाला पर्सन बनना पसंद करोगे या फिर आप कुछ ही चीजों में लेकिन एक्सपर्ट लेवल पे पर्सन बनना पसंद करोगे. तो आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा, ये क्वेश्चन है. ओके, सिंपल इनफ. So let me see, I'm just trying to see different perception here. So let me start with Tanmay. He's our first go-to guy. Am I audible? Yes, I can hear you. So I will certainly prefer to be expert in some fields because being expert at something, you have certain identity that you are an expert at something, so you can showcase that you are expert. But when you are average, you don't have anything to show to others that you can do anything at all. So for standing out from the crowd, you need to be an expert. Okay, That's my view. got it. तो तन्मय का ये है व्यू. देखते हैं अभी नमिता क्या बोलती है. Even I like to be expert in only one particular thing. Okay, just one thing, not two, just one. अरे एक या दो, जो भी है. हाँ. All right. Pretty similar view Namita also has. Let me see. देवेश क्या बोल रहा है. मुझे भी लाइक थोड़ी चीजों में परफेक्ट बनना है, एक्सपर्ट इन द सेंस, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि एवरेज चुनने के लिए, तो आई माइट गो बिलो एवरेज अगर बहुत सारी चीजें परस्यू करूंगा तो इसलिए थोड़ी चीजों में एक्सपर्टीज चाहिए. Okay, wonderful. Let me see what Lakshmikant has to say.
Bhaiya, my view is different. I would like to be average in most of the things because in that way I would be covering most of the things, first of all. And second thing is I will have an exposure to few things that if at all I am not an expert but I know the thing, उसमें expert बना जा सकता है. ऐसा नहीं है कि आप expert नहीं है तो बन नहीं सकते. पर आपको एक idea तो रहेगा कि मैं इन सब चीजों में मेरे को पता है. So I would go with the first option, that is I would be I would like to be being average in average. them. Got it. Okay, Yeah. no problem. Perfect. Let me see what Nitin ji has to say. भैया कुछ चीजों में एक्सपर्टीज दैट विल बी बेटर. Oh, okay. So Shruti is saying कुछ चीजों में expert रहना का option वो देगी. Let me see सोनम क्या option देगी. Okay, I would choose to be expert in few things because when you're expert in certain things, that means normally you're average in rest of things. There are a lot of things that you can pursue and be average in that. But expertise is something that you love about it, you're passionate, and you want to gain full knowledge about it. Okay, perfect. We have Nitin ji as well. Is he there? Yeah, he is हाँ, here. सुमित, Yes. आप क्या पसंद मैं करोगे? मैं भी एक्सपर्ट ही बनना चाहूंगा वहाँ. Expert बनना चाहोगे कुछ चीजों में. Okay. Yeah. Perfect. We have Tulika. Let me see what Tulika says. So I am basically a journalist, generalist. So I'm like, I want to be average in everything because that's what I'm good at. I'm not a kind of a person who will just focus my entire life to only one thing and just try perfecting it every time because there are always new things to learn in any field that you work. So I prefer being average in most of them so that I can manage people because I have a good enough knowledge about everything, so I can maybe do anything. Okay. So I could hear the word everything and anything, which is very good. So wonderful. I got your point. So thank you so much. So let me ask Apurva what she has. I would also go with I think लक्ष्मीकांत and तुलिका कि अगर बहुत चीजों में एवरेज हो तो एक वाइड स्कोप मिलेगा बहुत सारी चीजों का एंड देन खुद का एबिलिटीज उसमें से जज करके यू कैन गो टू एन एक्सेलेंस लेवल. तो नेचुरली कुछ चीजों में आप एक्सपर्ट बन सकते हो अगर आप बहुत चीजों में एवरेज हो तो. Okay, wonderful. So it's like दोनों का मिक्स कर दिया गया आंसर, which is very smart move. But Sumit, ultimately everybody is aiming excellence only, right? Correct. Not aiming. They are more comfortable with being what? That's the main question actually. Like, are they comfortable being just average in many areas, or they are not comfortable being that and they want to be excellent in certain areas? Okay. Okay. All right. So again, ये question मैंने खुद से बनाया. In fact, just 1 घंटे 2 घंटे पहले ही बनाया क्लास के. एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि ये सिंपल क्वेश्चन पे तरह तरह के व्यूज आ रहे हैं, और टू बी ऑनेस्ट किसी के भी व्यू गलत नहीं है. इट्स जस्ट डिफरेंट पर्सनालिटी डिफरेंट पीपल हैव. कुछ लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं इसमें के लिए मुझे एक चीज में एक्सीलेंट बनना है, राइट. और कुछ लोग इसमें बहुत कंफर्टेबल रहते हैं कि एक्सीलेंस तो ठीक है, मैं इस टॉप लेवल पे भी नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखना चाहता हूँ जिसमें मैं तरह तरह की चीजें समझ पाऊँ, तरह तरह की चीजें खेल पाऊँ, या तरह तरह के मैं एक्टिविटीज कर पाऊँ. Okay, so to be honest, this question doesn't have any right or wrong answer, but just I would give a simple example saying why both are important. Okay, let's say आप सचिन तेंदुलकर हो. अगर आप किसी चीज में एक्सीलेंट नहीं हो, आप सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाओगे. तो बहुत लोग के आंसर सही थे कि अगर हम एक्सीलेंट ही नहीं हुए तो ना रिकॉग्निशन मिलेगा, ना हमारा कुछ स्पेशल आइडेंटिटी रहेगा, ना कुछ ऐसा रहेगा कि मैं किसी चीज में अच्छा हूँ. ओके, तो इसलिए एक्सीलेंस चाहिए. बट अगर सचिन तेंदुलकर बैटिंग में एक्सीलेंट है और लेट्स से एक बोट में वो डूब रहा है और उसको स्विमिंग नहीं आती है, बेसिक स्विमिंग भी नहीं आती है लेट्स से, तो वो इसका पूरा स्किल दूसरे फील्ड में बिल्कुल काम में नहीं आएगा. ओके, तो इसलिए इस केस में अगर वो ब्रॉड आउट
थोड़ा और ब्रॉड उसका रहता स्किल, जैसे स्विमिंग में भी वो उसको आती, नाउ ही कैन सर्वाइव। ओके, तो दोनों पर्सपेक्टिव एक तरह से ठीक है, दोनों पर्सपेक्टिव एक तरह से ऐसा है कि इट्स नॉट राइट और रॉन्ग, इट्स जस्ट हाउ वी सी थिंग्स, कि आपको किसमें कैसे रहना पसंद है। ओके, so this is a very very interesting question I thought, which will give a idea of how we think, क्योंकि ऐसे कोई क्वेश्चन जनरली हम सोचते नहीं, हम डेली लाइफ में मैं तो कभी नहीं सोचता हूँ कि अच्छा मुझे एक्सीलेंट बनना है, नहीं बनना है, क्या बनना है, वो हम सोचते नहीं है। बट जब हम एक बार ऐसे सोचते हैं तो नाउ वी अंडरस्टैंड डिफरेंट थिंग्स, क्यों हम कुछ कुछ चीजों में या तो एक्सीलेंट है, या क्यों हम बहुत सारी चीजों में नॉलेजेबल है। ओके, so that is just the basis of the question. But today's topic, like, I think it will be like a wake-up call for a lot of people, and I especially want you all to pay attention. This will be definitely a shorter class. I have not included a lot of points, and this will be like a wake-up call बहुत सारे ways में, and probably it should also inspire you in some ways, because I actually found it very बहुत relevant लगता है मुझे आजकल के यूथ के बारे में, और स्पेशली जब मैं देखता हूँ बहुत सारे मेरे जान पहचान के लोग, फ्रेंड्स है या जो भी है, उनके लिए मुझे ऐसे बहुत वैल्यूएबल सेशन लगता है एक तरह से। ओके, so today's class, like I said, it's about how to reach excellence. Let's say you are all comfortable, very comfortable being average in many areas, which is fine, but let's say आपकी कोई एक हॉबी ऐसी हो गई, या कोई आपको एक चीज ऐसे इतनी पसंद आ गई कि बाकी सब में तो एवरेज हो, बट कोई एक फील्ड में आपको एक्सेल करना है, या कोई एक फील्ड में आपको अच्छा बनना है, राइट? इवेंचुअली एक्सीलेंस डजंट मीन टू बी एट द टॉप, इट जस्ट मीन्स आप बाकी अपने पास्ट से बेहतर हो, या फिर एक जनरल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेहतर हो। ओके, सो इवेंचुअली एवरीबडी हैज टू एटलीस्ट बी गुड इन समथिंग, राइट? And doesn't mean it has to be like the best, but it is good, or it is much better than others. Okay, so if that is the goal, like how do I reach towards becoming better, that is what this class will give you. Okay, and why I took this class specifically is because of seeing the feedback and understanding कि आप कैसे ले रहे हो क्लास में, कितना समझ रहे हो, कितना डेप्थ में आप जा रहे हो, और तब मुझे लगा कि मुझे ये क्लास लेना चाहिए। ओके, so what I see outside in general and even inside and outside, like अंदर भी और बाहर भी मैं देखता हूँ कि दो चीजें मेन है जो आदमी को प्रिवेंट कर रही है, like from preventing bright people, preventing pretty people with good ideas, people who want to do something good, but two things are actually preventing them from making big changes. Okay, one is fear of starting something. कुछ भी करने के पहले इतना या तो डर होता है, या इतना बैकग्राउंड काम होता है, इतना प्रिपरेशन लगता है, इतना प्लानिंग लगता है, रिसोर्सेस सब लगते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट करने के पहले ही वो डर जाते हैं बहुत बार, बहुत सारे लोग, और इतना कॉम्प्लेक्स लगता है कि वो छोड़ देते हैं। ओके, और सेकंड जो मैं देखता हूँ कॉमन चीज जो रोकती है लोगों को अच्छा करने में, is they are not aiming for excellence, meaning वो एम ही नहीं है कि मुझे और बेहतर बनना है। ओके, एक्सीलेंस हियर डजंट मीन लाइक जस्ट वन गोल, वन एम, वन सिंगल पर्पस, इस तरह का नहीं बोल रहा हूँ मैं। विद एक्सीलेंस व्हाट आई मीन इज टू बिकमिंग द बेस्ट यू कैन इन दैट एरिया। ओके, सो द रीजन व्हाई आफ्टर like working for so many years, इतने तरह तरह के लोगों के साथ रह के, तरह तरह के प्रोजेक्ट्स में रह के, मुझे एक चीज जो समझ आई है वो ये है कि मैन ऑफ एक्सीलेंस जो होते हैं उनका हमेशा बहुत डिमांड रहा है और बहुत डिमांड रहेगा भी। द मोमेंट यू आर कंसिडर्ड, the moment you are considered somebody as a go-to person in a certain area, automatically you start commanding respect, you start commanding value, और जो भी हम चीजें हम बोल रहे हैं वो सब तरह की चीजें आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो पर्सन ऐसा नहीं है कि वो बेस्ट है वो एरिया में, क्योंकि वो पर्सन ऐसा है कि बाकी लोग जितना जानते हैं उससे ज्यादा जानता है। तो जो बाकी लोग हैं उनको उनसे ज्यादा जिसके पास आइडिया रहेगा उसकी बात सुनी जाएगी। ओके, so it's very important, because most of you are studying or most of you are going to get started now. It's a very good quality to take it up. Okay, so we'll see what are those things. So many people, right, many people
you remember like how they want better jobs, उनको better jobs चाहिए या better business चाहिए या फिर even better grades चाहिए, जितने भी grades आ रहे हैं उससे भी बेहतर चाहिए। बट बहुत कम लोग इसमें देखते हैं कि स्किल लेवल क्या है मेरा। सपोज मेरा जॉब मैं कर रहा हूँ या फिर मैं बिजनेस कर रहा हूँ या फिर मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो मेरा कितना स्किल है, मैं स्किल को कैसे इम्प्रूव करूँ, उस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। जैसे एक तरह की हैबिट है कि जैसे आप पढ़ते हैं तो जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते जाएंगे और फिर हम देखते हैं कि एक बार एक स्टूडेंट का एक माइंडसेट एक बन जाता है कि मेरा इतना एवरेज है, उससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है उसको, क्योंकि वो जो पैटर्न फॉलो कर रहा है उसमें उतना ही स्कोप है। ओके, सो इफ यू सी मेरा एवरेज अगर आप लेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग स्टैट्स लेंगे, so I was consistently like 70s guy, so 70-75 का ही मेरा एग्रीगेट था। 75 से 80 जाने के लिए जो शायद एफर्ट लगता या फिर जो थिंकिंग लगता, जितना रिसर्च लगता, जितना काम लगता, उस पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जैसे मैंने बोला एम्बिशन ही नहीं है, राइट। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये जो चीज है कि आपको अगर बेहतर करना है किसी भी फील्ड में, मेन थिंग इज द स्किल, आपके पास कितना स्किल है। ओके, आई थिंक यू ऑल शुड बी रिमेम्बरिंग, मैंने मेरी स्टोरी बताई थी जॉब चेंज की, कैसे मुझे 6 महीने लगे, और वंस आई अंडरस्टूड कि बाहर इशू नहीं है, अपॉर्चुनिटी में इशू नहीं है, जॉब मार्केट में इशू नहीं है, इशू ये है कि मुझे इतना नहीं आता जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वंस आई गॉट इट, वंस आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, ऑटोमेटिकली इवन वन अपॉर्चुनिटी इज इनफ, राइट। बिकॉज अगर 2-4 लोग हैं और अगर मैं उनसे अच्छा कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो मुझे लेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ गारंटी कि ऑलमोस्ट गारंटी, ओके, नॉट 100%, बट ऑलमोस्ट लाइक अ गारंटी इफ यू फोकस जस्ट ऑन योर स्किल सेट। कोई भी फील्ड में अगर आपको अच्छा बनना है या आपको लेट्स से बेहतर बनना है, लाइक लेट्स से यू आर प्रीटी गुड इन मेनी थिंग्स, बट आपको लगता है कि स्विमिंग इज माय हॉबी, या आपको लगता है कि सिंगिंग इज माय हॉबी, कुछ भी एक हॉबी है, उस हॉबी में आपको अगर ज्यादा अच्छा बनना है, राइट, नॉट नेसेसरी प्लेयर, बट ज्यादा अच्छा बनना है, तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर स्किल्स कि क्या करना है, कैसे करना है। ओके, ऑटोमेटिकली आप अपने आप पे काम करोगे, ऑटोमेटिकली आपका स्किल लेवल बढ़ेगा। ओके, सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, काफी सिंपल बात लगती है मुझे तो, कि सबको पता ही है कि एक्सीलेंस क्या है, आप बार बार करो और उससे शायद एक्सीलेंस आ जाए, राइट। बट फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट क्या है कि एक्सीलेंस इज नेवर अ फिक्स पॉइंट, इट्स नेवर अ फिक्स पॉइंट। हम कभी ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि मैं आज सब जानता हूं इस बारे में, इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर वो बोल रहा है तो बस वो उसका फीलिंग है, इट्स नॉट द रियलिटी। देयर इज ऑलवेज देयर इज समथिंग यू कैन इम्प्रूव, ऑलवेज ऐसा रहेगा कि कुछ ना कुछ आप बेहतर कर सकते हो। तो व्हेन यू फोकस, लाइक मेनी पीपल सेड दे वांट टू बी एक्सपर्ट, which is good, but it's not like one day you will not become an expert. Okay, it's just that if you keep on improving, someday you will reach a level जहाँ पे आपको बाकी आसपास के लोगों से बेहतर पता है, राइट। और आप उस लेवल से आगे जाओगे तो आसपास के और ज्यादा एरिया के लोगों के से बेहतर पता है, और आप एक्सपर्ट लेवल पे भी जाओगे तो मे बी स्टेट में आप एक अकेले रहोगे। क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं हम, राइट। तो आप गली में आप हो सकते हो बेस्ट प्लेयर हो, फिर आप हो सकते हो पूरे टाउन में बेस्ट प्लेयर हो, फिर सिटी में बेस्ट प्लेयर हो, स्टेट में बेस्ट प्लेयर हो, कंट्री में बेस्ट प्लेयर हो, और अभी कंट्री से आए तो वर्ल्ड में बेस्ट प्लेयर भी हो सकते हैं, राइट। तो वर्ल्ड में बेस्ट प्लेयर डजंट मीन ही इज अ कंप्लीट प्लेयर हु हैज नो फ्लॉस, इट जस्ट मीन्स ही इज बेटर देन अदर पीपल। ओके, तो फर्स्ट नंबर 1 कॉन्सेप्ट अबाउट एक्सीलेंस जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि कोई ऐसा एक दिन नहीं आएगा जब हम बोल सकते हैं हम एक्सपर्ट बन चुके हैं, कभी नहीं आएगा वो। और अगर आया तो वो एक तरह का आपके अंदर का एक कॉन्फिडेंस हो सकता है, या फिर एक तरह से आपका एश्योरेंस हो सकता है कि ठीक है अब मुझे पता है क्या चल रहा है। ओके, सो नंबर 1 पॉइंट इज दिस, बट द क्रूशियल पॉइंट इज दिस, व्हेन यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, राइट। सपोज आपको कुछ भी एक है, आपको कुछ पढ़ना शुरू करना है, नया सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, नया एक हॉबी है जिसके बारे में आपको सीखना है,
लेट्स से आपको गिटार सीखना है या लेट्स से आपको कुछ भी सीखना है और एक नया आपने प्रोजेक्ट ले लिया, राइट? जैसे ये यार्ड भी एक प्रोजेक्ट ही है, बट एक तरह का आपने प्रोजेक्ट ले लिया. So whenever you want to start something, important thing is it doesn't need to be started with perfection. Many people, बहुत सारे लोग यहीं पे स्टक हो जाते हैं. बहुत सारे लोग, you won't believe, but in reality if you see, बहुत कम projects start होते हैं. Forget about succeeding and failing, start ही नहीं होता है. Same way में अगर कोई hobby है तो hobby जैसे बन के रह जाएगी until unless you actually start doing something about it. Okay, but important point is to start, it need not be perfect. Okay, starting में actually it's better कि mediocre ही है. mediocre मतलब average है या below average भी, कैसे भी है. It's important that when you start learning a subject, let's say अभी आप कोई subject learn करना चाह रहे हो, बहुत complex है, आएंगे ऐसे बहुत सारे complex subjects, but बहुत complex सब्जेक्ट आ गया, अभी आपको नहीं समझ आ रहा है. स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में थोड़ी ना आप सब समझ पाओगे, राइट? एंड इट्स ओके, इट्स अंडरस्टूड कि एक ही बार में नहीं होगा, ठीक है? सेम वे इफ यू वांट टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, वांट टू स्टार्ट एनीथिंग, फर्स्ट टाइम में परफेक्ट नहीं होगा. एंड इफ यू जस्ट वेट फॉर इट टू बी परफेक्ट, इट्स नॉट गोना हैपन, ठीक है? सो स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी चीज स्टार्ट करने के लिए, आपको हॉबी या जो भी है स्टार्ट करने के लिए, इट्स ओके टू फॉर इट टू बी एवरेज. ओके, लेट्स से आपको कम्युनिकेशन में इंप्रूव करना है. द मोमेंट यू स्टार्ट expressing, the moment you start working on it, you will not be perfect, right? You will be probably very bad, then you will get okay, then you will get good, then you will get better, okay, then maybe you'll get best, but again best is relative. Okay, so number one concept is this, which is very important. I think मैंने पहले भी बोल दिया है कि कुछ भी स्टार्ट करना है तो स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन परफेक्शन. बहुत टाइम मैंने बहुत सारे चीजों में लिटरली अपने आप को परफेक्शन के चक्कर में रोक के रखा था. ठीक है, सब अच्छा होगा तब मैं करूंगा, सब वर्कआउट होगा तब मैं करूंगा, ठीक है, सब सिचुएशन अच्छी रहेगी तब मैं करूंगा. तो नंबर वन कॉन्सेप्ट क्या है कि स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन. तो अगर आपको कुछ शुरू करना है, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको कुछ नॉवल पढ़नी है, कुछ भी करना है, हॉबी है, कुछ भी हॉबी करना है, तो मेन थिंग इज टू गेट स्टार्टेड. बिकॉज वंस यू गेट स्टार्टेड, जो भी आपका स्किल में कमी है वो आप इजीली एफर्ट से वो गैप ब्रिज कर सकते हो. ओके, तो सिंपल एग्जांपल आप देखोगे तो फ्लिपकार्ट एक और या अमेज़न भी ले लो, जस्ट ई बुक्स या बुक्स बेचते थे पहले. वो बुक से फिर उन्होंने धीरे धीरे जगह जगह एक्सपेंड किया सब किया, राइट? बट द पॉइंट इज क्या है कि दे वर द फर्स्ट टू गेट स्टार्टेड इन अ वे. वंस दे गॉट स्टार्टेड, एक बार उनके पास मोमेंटम आए, सारे उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाए, यू नो, तरह तरह के जो भी हमने कॉन्सेप्ट देखे, सक्सेस फेलियर जो भी आप देख लो, कॉन्सेप्ट्स उन्होंने अच्छे से किया और फिर वो एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गए. और उसके बाद आज फ्लिपकार्ट क्या है, बहुत चीजें बेचता है. इट्स लाइक अ लीडर इन मेनी थिंग्स. सेम वे अमेज़न तो वर्ल्ड वाइड लीडर है काफी चीजों में. स्टार्टिंग तो ऐसे नहीं था, राइट? इफ दे वांटेड टू डू एवरीथिंग एट वंस, दे कैन, बट कैन यू इमेजिन हाउ कॉम्प्लेक्स दैट प्रोजेक्ट इज? फिर उसके लिए कितने रिसोर्स चाहिए, कितना सब कुछ चाहिए. रादर देन दैट, स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल, जस्ट वेरी लिमिटेड, कि ठीक है मैं इतना ही कर रहा हूँ, उससे शुरू करो और धीरे 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 यू कैन एक्सपैंड. Okay, same way, like as a students or as a people who are going to do a lot of learning, कोई भी चीज है तो आप एक कॉन्सेप्ट से शुरू करो. लाइक एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आया तो एक एक चैप्टर बाय चैप्टर करो, या फिर एक ओवरव्यू तरह का करो जो मैं आगे बोलूंगा. बट important thing is to get started. Okay, in fact, like interestingly, when I think about it, if you look at various, like I included idli bandi because I love idli, you know. So if you think at it, suppose आज मेरे घर से बेस्ट इडली कहाँ मिलती है, लेट्स से मेरे घर से लेट्स से 50 किलोमीटर दूर मिलती है बेस्ट इडली जो है. Am I going to go there everywhere? There's no way I can go there every time, right? Can I go there every time? No. तो अब मुझे इडली खाने का मन करेगा तो मैं क्या करूंगा, घर के आसपास और कौन सा अच्छा है वहां जाऊंगा, राइट? In reality, is it the best whom I like really the best? No, but वो आसपास के एरिया में वो अच्छा है, right? So the important point here is, अगर वो ऐसे सोच लेता कि मेरी इडली तो इतनी अच्छी नहीं है या मेरे पास तो इतना
टेस्ट नहीं है जितना उसके पास है, क्योंकि उन लोग को तो पता रहता है एक दूसरे के बारे में। अगर वो ऐसे सोच रहे थे कि यहाँ पे मेरा इतना टेस्ट नहीं है जितना उतना है तो मेरा नहीं चलेगा, ऐसे सोच लेंगे तो वो तो बिजनेस सेटअप ही नहीं कर सकता है, और मोर देन दैट उनका एक पूरा अपॉर्चुनिटी चला जाता है, राइट? सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट वंस यू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे, आप देखोगे आसपास में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कुछ भी करने के लिए। आपको कुछ भी नया करना है, या फिर आपको लेट्स से सिंपल एग्जांपल है, अगर आपको कुछ एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, आप देखोगे क्लास में सबको भी कॉम्प्लेक्स लगेगा लेट्स से वो, बट नाउ इफ यू एक्चुअली डिग इन लिटिल डीप और थोड़ा और आप पढ़ लो और उसमें बाकी लोगों से ज्यादा एफर्ट थोड़ा लगा लो, very soon you will see you will become the expert in that subject। और बाकी सब लोग आपसे पूछेंगे, hey can you help me how to read this, can you help me how to solve this। लग रहा है कि आपको ज्यादा पता है इसके बारे में। okay, so like I'm saying, it's very important to get started with the speed। okay, and same thing I did when I started my business, when I started my own company here। first मैं you cannot believe how unprofessional it was। मैं कॉल करता था और मैं बोलता था ऐसा ऐसा हम ले रहे हैं क्लास, आ जाओ। तो पूछते थे कहाँ पे आना है, मैं बोलता मेरे पास ऑफिस तो नहीं है बट आप घर पे ही आ जाओ। तो हमने एक्चुअली एक क्लास लिया जहाँ पे 2 लोग घर पे आए और हमने पढ़ाया है घर पे। फिर हमको लगा आप घर में कितने लोग को बुलाएंगे, प्लस सेफ भी नहीं लगता है कि किसी को घर में बुला के कैसे पढ़ाएंगे। फिर हमने लाइब्रेरी में पढ़ाना शुरू किया, लाइब्रेरी में पढ़ाया, वहाँ पे लोग आने लगे, बट वो भी इन पर्सन आते थे। तो बहुत लोग बोलते थे हम तो लाइक 150-200 किलोमीटर दूर है, हम कहाँ से आएंगे। मैंने बोला क्वेश्चन तो सही है, इनफैक्ट कोई एक आया भी लाइक 150 किलोमीटर दूर तक, बट उससे ज्यादा तो नहीं आ पाते। तो आई थॉट क्वेश्चन तो वैलिड है, व्हाट डू आई डू नाउ, आई डू ऑनलाइन। ऑनलाइन कभी पढ़ाया ही नहीं है लाइफ में, कभी देखा ही नहीं है कि पढ़ा सकते हैं, कैसा रहेगा क्या रहेगा, ऑल दो सेट ऑफ अनसर्टेनिटीज। अभी सब लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए डिजिटल मीडिया से, बट व्हेन वी गॉट स्टार्टेड वी वर नॉट कंफर्टेबल। सो तब हमें लगता था कैसे होगा, शुरू किया, पहले के 2-4 बैच प्रॉब्लम आए, वी लर्न ओवर इट, क्या करना है, क्या 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 इंप्रूवमेंट है। ऑनलाइन पे गए, अभी नेक्स्ट हम सोच रहे हैं कि ऑनलाइन से भी अच्छा वेबसाइट में डालेंगे, जहाँ पे हमको ऐसे भी नहीं है कि सबको वही टाइम पे आना है, वही टाइम पे प्रेजेंट रहना है, लाइक यूट्यूब टाइप से। जैसे यूट्यूब में अभी मैं अगर मैं डाल रहा हूँ तो कोई भी अपने कन्वीनियंस से सुन सकता है। सेम वे नाउ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कोर्स वुड बी टू लॉन्च इट ऑन अ वेबसाइट। सो द पॉइंट इज इफ आई वेट कि मैं वेबसाइट पे डायरेक्ट लॉन्च करूंगा, नाउ आई एम मिसिंग ऑल दैट लर्निंग विच आई गॉट एट डिफरेंट स्टेजेस। और मे बी डायरेक्ट वेबसाइट करूंगा तो मुझे अगर वो अच्छा समझ नहीं आया, I will get disheartened and maybe I will quit also कि ये सब काम करने वाला ही नहीं है। ओके, सो ये यार्ड क्लासेस को ही ले लो आप। ये तो मैंने बस एक सोचा कि ठीक है ऐसे मैं क्लासेस करूंगा और एक तरह से जो भी मुझे पता है वो मैं बाकी लोगों से शेयर करूंगा। बट अगर मैं इसको और प्रोफेशनल करके और एडवर्टाइज करके और मतलब इसको टू मच धूमधाम से करने का वेट करता तो ये क्लास ही नहीं होते अभी। और सेकेंड थिंग, बहुत ज्यादा जितना टाइम जाते रहता है उतना अपना मोटिवेशन कम होते रहता है। ओके, सो नंबर 1 कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड इन एक्सीलेंस इज, फर्स्ट थिंग इज स्पीड। परफेक्शन स्टार्टिंग में नहीं होगी, विच इज ओके, यू विल लर्न इन इट, बट मेन थिंग इज टू हैव स्पीड कि ठीक है अभी मुझे करना है तो करना है। ओके, और एक अच्छा मॉडल है जो आई थिंक विल हेल्प यू रियली अंडरस्टैंडिंग, especially when it's very complex, because it took me a long time to actually understand a very simple concept like this। कि स्टार्टिंग में अगर मैं कुछ पढ़ता था, अगर मुझे वो परफेक्टली करना है फर्स्ट टाइम में, आई एम एक्चुअली स्टक फॉर years, days, जो भी बोलो आप, I'm actually stuck for a long time। So I had a couple of other business ideas that I thought I should implement, and it never got implemented। Why? Because इतना बड़ा प्रोजेक्ट था वो, एक तरह से मेरे से बड़ा प्रोजेक्ट था, जितना मैं हैंडल कर पाता उससे बड़ा था। तो अगर हम परफेक्शन में चले गए पहले कि एक बहुत बड़ा स्टार्ट करना है, बहुत बैंग में करना है, तो मोस्ट लाइकली वो नहीं होगा। मोस्ट लाइकली, नॉट ऑलवेज, बट मेनी टाइम्स वो नहीं होगा। तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, राइट, बहुत बार हम देखते हैं कुछ हमारे करिकुलम में ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आ जाते हैं
जो बहुत टफ लगता है फ्रॉम स्टार्ट की, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है या उसके लिए बहुत सारा बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए, राइट? तो ऐसे सब के लिए एक ओवरव्यू मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग वे है उसको अप्रोच करने का। तो इसका ओवरव्यू मॉडल का क्या है, बेटर अप्रोच क्या है कि rather than focusing on one book and focusing on that one chapter, let's say आपको वो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहीं पे अटकने से अच्छा है आप एक ओवरव्यू में देखो सबसे पहले चीजों को। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एट एन ओवरव्यू लेवल कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, एंड टू एंड का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। और थोड़ा टाइम लगेगा इस तरह से थिंकिंग के लिए, बट ये बहुत यूजफुल रहेगा आपको, बहुत लाइफ में काफी यूजफुल रहेगा कि ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, वो फ्रंट पर्सन क्या बोलना चाह रहा है मुझे, ये बुक ये सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट का विथ क्या है, वो क्या बताना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है, कौन से एरियाज पे इम्पैक्ट करता है। इस तरह के क्वेश्चन मैं कभी पूछता ही नहीं था, और क्योंकि मैं इस तरह के क्वेश्चन पूछता ही नहीं था, अगर एक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आई कैन नॉट रिलेट इट इन द होल पिक्चर कि ठीक है मैं कॉन्सेप्ट तो समझ रहा हूँ बट उसका यूज क्या है, रियलिटी में उसका विथ कितना है कि मैं उस समझ के क्या होगा, नहीं समझा तो क्या नहीं होगा। उस तरह की थिंकिंग करते नहीं है 90% ऑफ द लोग, क्योंकि कभी आदत नहीं है। So better approach to handle complex subject is this: rather than first of all going at a miniature level, like subject by subject, line by line level, first understand वो complex subject करना क्या चाह रहा है, उसका purpose क्या है, क्या सिखाना चाह रहा है। Second, go for multiple sources first, like go for ठीक है ये बुक है तो 2-3 बुक ले लो, यूट्यूब में वीडियोस देख लो जो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, या फिर एक तरह से गूगल करके आप अच्छे से आंसर ढूंढ सकते हो। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द ओवरव्यू फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। व्हाट हैपेंस इज वंस यू एक्चुअली जैसे ही आप समझने लगोगे ओवरव्यू का क्या है, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट रिलेटिंग टू इट। तो अगर आपको कोई छोटी जगह बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है जो समझ नहीं आ रही है, इट्स मच मच इजियर to actually find answer for that small thing rather than going from small to big level। बहुत बार क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट करके बड़े पूरे एक सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं, बट रादर देन दैट यू टेक द अदर अप्रोच वेयर हम पहले ओवरऑल पिक्चर को समझेंगे, फिर हम लेयर पे जाएंगे। ओके पढ़ना तो दोनों केस में ऑलमोस्ट उतना ही है, बट आप देखोगे कितना इम्पैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। और ऐसा जब अंडरस्टैंडिंग आता है तब आपको वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तब ऐसा नहीं है कि आपको बस मार्क्स आ गए और आप भूल गए, यू विल एक्चुअली हैव इट विद यू फॉर लॉन्ग टाइम। तो जब मैं ये कॉन्सेप्ट समझा तब मैंने जब अपने लाइफ में यूज करने लगा, आई कुड सी द बिग डिफरेंस। देयर सो मच क्लैरिटी, there is so much depth in understanding same cheese, same effort, almost same effort, but now you get better। Okay, so one advice for you or one suggestion for you is this: जब आपको कुछ complex subject आए, complex topic आ जाए या फिर एक complex scenario आ जाए, go with an overview model first, okay, and then break it down to simple levels। Okay, so now very simply, how to move from average to expert, right? Many people said they would like to be expert, and like I said, expert is a moving target, so fixed एक stage नहीं है, एक particular zone नहीं है, एक ये नहीं है, एक दिन ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप एक्सपर्ट बन गए हो। बट उसका अगर आपको एवरेज से में भी एक्सपर्ट की लेवल की तरफ जाना है या क्लोज टू दैट जाना है, प्रोसेस तो बहुत सिंपल है। यू स्टार्ट समथिंग एंड लेट्स सी आपको सक्सेस हुआ नहीं हुआ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैसिव सक्सेस मिल गया, दैट मीन्स यू डिड इट राइट इन द फर्स्ट वे। नाउ आपके पास जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो है बट बहुत कम है। अब आपको पता है क्या करना है, तो यू कैन कीप डूइंग इट टिल यू सी ओके ये काम नहीं कर रहा है, नाउ यू ट्राई टू इम्प्रूव। बट लेट्स से आप कुछ कर रहे हो वो काम नहीं कर रहा है, राइट? फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, नहीं आ रहा है समझ में, या फिर फर्स्ट टाइम आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो वो नहीं आ रहा है। नाउ व्हाट यू डू इज रिमेंबर हाउ टू टेक द फीडबैक, राइट? सो यू जस्ट, if everything works fine, perfect, you are on the right path, let's say. But if things are not okay, remember it's always okay, first step is the failure itself, so it's all right to not understand in the first time, it's all right to not get perfectly fine at the first time. Get the feedback, get an honest feedback, like
बेसिकली एग्जाम इज नथिंग बट अ फीडबैक, या आपके जो भी लोग बोल रहे हैं वो इज नथिंग बट अ फीडबैक. सो टेक द फीडबैक, restart this process again, simple process. Again you start, make some changes, start the process again, and now you see क्या है इसमें, कुछ इम्प्रूवमेंट है या कितना इम्प्रूवमेंट है, क्या है. तो समझने के लिए तो बहुत आसान नहीं है कि ओके स्टेप बाय स्टेप करना है, और लिटरली थोड़े दिन में आप एक्सपर्ट बन जाओगे कोई भी फील्ड में. आसपास में बनना है बहुत आसान है, लेट्स से एक पूरे एरिया में बनना है थोड़ा मुश्किल है, सिटी में और थोड़ा मुश्किल है, स्टेट में थोड़ा और मुश्किल है, बट इट्स डूएबल. ओके, so this is the simple way how you can become an expert at a conceptual level. Okay, but होता क्या है, 2-3 बार हमने कर लिया, फेल हो गया, हम छोड़ देते हैं. 2-3 बार हुआ कॉम्प्लेक्स है, छोड़ देते हैं, और फिर तब ऐसे किया तो हम एक्सपर्ट नहीं बनेंगे. एंड इफ यू आर ओके दैट्स फाइन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. ओके, आप ये नहीं सोच सकते कि भाई मैं ट्राई तो बहुत करा बट एक्सपर्ट नहीं बना. ओके, 3-4 बार ट्रायल को हम एक्सपर्ट तो नहीं बोलेंगे. तो इस मॉडल में प्रॉब्लम क्या है, जो आज मेन मुझे लगता है, इस मॉडल तो बहुत आसान है बट उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, या फिर बहुत मुश्किल मैं देखता हूँ. आजकल तो और ज्यादा मुश्किल दिखती है मुझे, अगर कॉमन लोग को देखता हूँ मैं. क्यों, जब मैं सोचता था कि क्यों ऐसे है कि मॉडल्स तो इतना इजी है, हाउ आई कैन बिकम एक्सीलेंट इन एनीथिंग, व्हाई एम आई नॉट एक्सीलेंट इन मेनी थिंग्स, राइट? व्हाई एम आई नॉट सो एक्सीलेंट इन सो मेनी थिंग्स? उसका जब मैं देखता हूँ बैकग्राउंड, तो आई सी इट इन माई हैबिट्स, राइट? सपोज एग्जांपल इंजीनियरिंग है, तो मिनिमम से मिनिमम कितना पढ़ना है उतना पढ़ के पास कर लिया, राइट? वी गो फॉर, ठीक है, द मोस्ट एफिशिएंट वे इज टू गेट 70% इज दिस, लेट्स डू दिस, मैटर ओवर, राइट? तो उसमें हम एक्सीलेंस को साइड में कर रहे हैं. सेकेंड, जो मिनिमम पॉसिबल, इतना चलेगा क्या, इतना किया तो चलेगा क्या, ये जो एटीट्यूड है, it's actually one of the biggest cause of not excelling in many places. कि जब चलता है एटीट्यूड में हम रहते हैं, तो we are okay with not making it the best we can, not exactly perfect, but it is the best we can. If we don't start giving the best that we can, slowly we move towards this attitude. Okay, और बहुत बार हम देखते हैं जो बहुत तरह के जुगाड़ लगाते हैं, फ्रीक्वेंट जुगाड़. तो जुगाड़ में मेरे लिए तो नया वर्ड था कुछ साल पहले तक, but it's basically there is a problem, how can I fix it real quick, and how can I make it work, let's say. Okay, तो ये ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत अच्छा है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई, इंस्टेंटली आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे उसको सॉल्व कर रहे हो, वो अच्छा है. बट अगर वो एक हैबिट बन गया आपका, it's again a problem, because it will actually make you more of person who just fixes things. जब कुछ रॉन्ग हो जाता है बस मैं उसको फिक्स कर सकता हूँ. बट व्हेन यू गो एट अ डीपर लेवल, अगर आपको कुछ क्रिएट करना है, और लाइफ तो बहुत बड़ी है, तो अगर आपको कुछ क्रिएट करना है, this person will not be able to create something because he is not used to that depth of going about things. Okay, so जुगाड़ बहुत अच्छा है, but if you frequently get used to it, try to avoid it. Okay, और बहुत सारे लोग मैं तो देखता हूँ इंटेंट ही बहुत लो है, बहुत लो इंटेंट है. मतलब एक तरह से इंटेंट ये फीलिंग नहीं है, या इंटेंट ये नहीं है कि ठीक है ये मेरी लाइफ है, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, आई नीड टू बी द बेस्ट दैट आई कैन अबाउट इट. It's okay if I am there, if it's okay if I'm not there. More like I can see myself like maybe 15 years ago. It's okay, जो चल रहा है वो सब ठीक है. But now when I see, it's actually not okay, because it's a kind of living in half-hearted way. Okay, so बहुत बार क्या होता है, लो इंटेंट से रहा तो भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है. And then there's fear of failure, like I said, डर होता है. तो फिर बहुत बार जब हम पहले बार ही फेल हो जाएंगे, तो वो मॉडल के पास जाएंगे भी नहीं. हम कंक्लूड कर देते हैं कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए है ही नहीं, ये जो भी चीज है वो मेरे लिए है ही नहीं, आई एम डन विद इट. ओके, नाउ यू start to new model, you do the same thing, you fail there because you will fail. The moment you fail there, you will think ये मेरे लिए नहीं है, you will move to something else. Okay, so and then there's lots of inertia, because of such things there's lots of inertia. Okay, तो problem क्या है कि अगर आप गलत आदत को गले लगा रहे हो, तो धीरे धीरे वो गले नहीं लग रहा है, वो आपके गले पड़ रहा है. तो now you have to really shrug it off
कि ठीक है भाई तू अभी जा, मुझे अब किसी फील्ड में अच्छा बनना है, लेट्स से, राइट? So we are and remember, my first question has nothing to do with this, because in first question you are average, but in this case you are way below average, right? You are not even average, you are way below average. So अगर आप ऐसे ऐसे आपके thought patterns रहेंगे तो very soon you will see you are not good at anything, whereas an average is at least average in many things. He is at least on par with what society expects or what things expect. But अगर आप उससे भी कम पहुंच गए तो यहाँ तो सब चीज ही प्रॉब्लम है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो ऐसे वो एक तरह का आपको प्रॉब्लम देगा फ्यूचर में। ओके, सो रियलिटी काफी सिंपल है। I think many people understand how to be an expert. It's actually not difficult. So it's very practical idea is to be at least good at something. Okay, not be like fully perfect, but if you are good in something, let's say आप अपने ग्रुप में आप अच्छा गाते हो, अभी कोई गाने की बात आएगी तो people will say, hey, why don't you sing a song? Because you sing better than them, not because you are the best, but you sing better than them. This way, like people will saying थोड़ा recognition मिलेगा, या थोड़ा आपको confidence मिलेगा, थोड़ा आपको जॉय मिलेगा, फेम मिलेगा, जो भी है एक तरह का people can identify with you. Okay, so it's actually not so hard to be good at something. Just take it up, whatever it is. आपको let's say पेंटिंग करना है, ड्राइंग करना है, या कुछ करना है, ऐसा भी नहीं है, जस्ट एज अ पर्सन भी बेहतर बनना है, दैट इज ऑल्सो फाइन। वॉट एवर इट इज, कोई भी एक चीज ले लीजिए जिसमें आपको बेहतर बनना है, जो आपका इंटरेस्ट है। लो इंटरेस्ट मत लीजिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस तरह का आप एक टॉपिक लीजिए, कुछ भी सब्जेक्ट लीजिए, कुछ भी हॉबी लीजिए, और उसमें ट्राई टू डेवलप इट। when you try to develop it, that is when you will automatically feel all of these things: confidence, you will feel ambitions, you will feel good about it. Okay, and now you know exactly that even if you fail, it's okay. Even if it doesn't work out first time, it's okay. But the thing is, if you don't go, अगर आप वो रास्ते में ही नहीं गए तो कुछ होगा ही नहीं आगे आपका उसके वो पर्टिकुलर चीज के बारे में। ओके, सो द थिंग अबाउट दिस इज व्हाई दे से पैशन, या आपका जो भी इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट है तो हार्डवर्क भी हार्डवर्क नहीं लगता है, आराम से जो भी अप एंड डाउन है आप इजीली उसको ओवरकम कर लोगे, क्योंकि टाइम लगता है तो वो भी आप दे पाओगे, अप एंड डाउन आएंगे तो वो भी ओके रहेगा, बहुत प्रैक्टिस लगेगा, उसमें भी आपको मजा आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत टफ है, बहुत हार्ड वर्क है, या फिर इट्स नॉट फन। ठीक है, तो कोई भी एक चीज लीजिए और लेट्स सी कैसे आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होता है। एक दो चीज ही बहुत है। तो हाउ दिस मॉडल हेल्प मी, विच मॉडल, द ओवरव्यू मॉडल ऑफ गोइंग अबाउट थिंग्स, और हाउ when I became little better in one area, how it helped me is tremendously. Okay, so I was student not long ago. In fact, I'm still a student. I'm still learning so many things. संस्कृत सीख रहा हूँ मैं, तरह तरह की चीजें सीख रहा हूँ, सब में तो मैं बहुत मतलब स्टूडेंट हूँ, बेसिक लेवल का स्टूडेंट हूँ, राइट? But once I understood these concepts, it helped me become a teacher. And once I became a teacher, when I taught for the first time, जब मैं पहली बार पढ़ाया, मुझे तो अभी लगता भी नहीं है कि मैं क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, और काफी मतलब फर्स्ट टाइम देखोगे तो कोई नहीं बोल सकता था कि मैं अच्छे से पढ़ा भी सकता हूँ। उस तरह से उस पर्सन से अगर आज मैं इस पर्सन पे बन गया हूँ कि वो कम से कम बोल तो पा रहा है या समझा तो पा रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ लूप्स, वो सेम फेलियर के, फीडबैक के, हाउ टू इम्प्रूव के, वो सब एक बार आप लूप से जाते गए तो आप इम्प्रूव होते जाओगे। स्टिल एम आई एक्सपर्ट? नो। एम आई बेटर देन व्हाट आई वाज? डेफिनेटली। ओके, so like I'm saying, I was unable to communicate properly in English not long ago. Okay, but from there I actually I'm able to communicate better. I'm recognized for that I can communicate better here and in my friends, in my groups. That is nothing but process of doing it again and again and again. Okay, starting से कोई skill लेके नहीं आता है, starting से कोई perfect नहीं बनता है। Okay, so that is how this model can help you. It gave me a switch, a promotion in job, and this understanding this model actually helped me set up my own company from scratch, because I know कि कुछ भी चीज perfect होने की जरूरत नहीं है, so it's okay. Okay, and then I'm now a certified ethical hacker
from totally non-IT background. I'm a biotechnology student, but today I got into cybersecurity. I got into understanding ethical hacking also. How I could do this, not continuously thinking I don't know, ये मेरा नहीं है, मुझे पता नहीं, ऐसे नहीं. ये चीज है तो उसको कैसे मैं समझूं, कैसे उससे आगे बढ़ूं. Okay. And the main advantage is this: if you just follow this simple advice or simple model or guidelines, first thing it will do is it will reduce your confusion, it will reduce your stress, guilt, जो भी है, मैंने किया नहीं, पहले नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उस तरह के फीलिंग्स आपके बहुत कम हो जाएंगे. और second thing is it will give you actually more joy, satisfaction and peace of mind. It's something that you will feel because अभी क्या है, आपका जो हॉबी है, अभी जो आपका जो इंटरेस्ट है, अभी आपका जो चीज आपको पसंद है, उसमें आपने एक्सप्लोर किया है. Whatever way you want to, you have just explored it and you don't have that feeling कि मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है. Okay, so that's it for today. I think today we did well. So in short, if I have to conclude this, I would say कि just take a look at that overview model which I told you. It's better to approach a problem from top down, like see overview क्या है और फिर कैसे हम concepts को break करेंगे. And second thing is try to just do one thing that is of interest to you. उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ो. ऐसा नहीं है कि totally perfectly excellent तक पहुंच जाओ, पहुंचे तो अच्छा है, but at least थोड़ा सा steps लो उसके बारे में, थोड़ा सा आप आगे बढ़ो. Start inculcating this habit of trying to become better at something. Okay, because life में आपको बहुत ये change नहीं होगा. Practically speaking, it's not that it will give you instant benefit. It will give you like it will change a lot of things. It will change your whole life. ऐसा नहीं है. But these small shifts that you make, if you see like life 5 years from today, 10 years from today, when you go back, you will actually be thankful that you did this, because it will make you, it will give you much more than how much effort you put into this. Okay, so that's it for today, guys. In terms of presentation, time wise, I think we have 10 minutes, which is perfect. So any questions, guys? Okay, Namita added 2-3 points. We do small average things only, we become expert in anything. We directly don't become expert very good. That is very correct. With that, there is no direct way to becoming expert. Like I told you, it's not that one day you will have the perfect focus, you will do everything perfectly and hey, you are an expert. it's not going to happen. But the point is, at least you start approaching in that way things कि ठीक है, मुझे इसमें अच्छा बनना है, not just काम चलाओ बनना है. Any questions, guys? No questions. सब expert बन गए क्या? All right, like if there's no question, we can close. Questions, Sumit. Huh? Gained expertise in not asking any questions. That is good. Being expert in not asking questions. Let me then call out some names and see if they have anything, because we have 5 more minutes, let's say. Shruti, you have something? Hey Shruti, खाना खा रहे हो क्या? I think she is busy somewhere else. सर आज जल्दी छुट्टी दे दो. Yes, Shruti. Hello. Hello. All right, guys. So if there's no question, I have a question. yes,
1 second, Namita. I think Shruti wanted to say something. Oh, she's gone. Go ahead, Namita. Means like how do we become like how do we be means like how do we change from mediocrity to excellent? Means how do we change ourselves in this way? Okay, so the way I told was very simple. It's the loop that I showed you, right? Simple way is this loop. How to move from average to expert is you start something. You whatever you want to be expert in, you want to be expert in a subject, you want to be expert in, let's say, drawing, painting, whatever it is, you start. First of all, you have to start with whatever you know. Start with that, and once you start it, you will see okay, there are many things I don't know. So then you have to learn. You have to learn from outside. You have to learn from people who know, or you have to learn from let's say YouTube videos, whatever it is. Find a teacher, then you learn, and then you learn and you see how it impacts you, and then you redo this. Like again, you, for example, if it's a painting, again you draw a painting, you will see okay, there's again scope of improvement. Again you improve a bit, and again you'll see okay, this time it's better, but still you can do something. So the point is to start, and the second thing is the point is to not get disheartened when you are not good at it initially. बाकी सीखने के लिए तो बहुत चीजें, बहुत रिसोर्सेस हैं. Okay. All right. So Apurva have a point, very good point. That she says expert is our own way of considering it. जरूरी नहीं है कि expert मतलब world class है. You have identity and feel good about yourself, even if you are expert among small group of people. Like I said, just a small group of people also, if you are better than the group, automatically you are expert for them. Okay. So again, like in reality, it's not that कि आप किसी चीज में भी कुछ भी अच्छे नहीं हो, definitely हो कुछ ना कुछ. But my point is to take yourself more deep and understand how you can use it in your life. All right, guys, good question. So okay, if no question, let's wind up today's call. Next we have class next week, which is incidentally my birthday also. So we'll have a class on my birthday, 3rd of August. So I'll see you all then. Okay, bye guys. Advance Bye happy then. birthday, Sumit. Bye.